A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos of class 11th accountancy, we already discussed a lots of the important theoretical as well as the conceptual topic related to the theory base of accounting, that is, what is the meaning of bookkeeping, accounting and accountancy, as well as we discussed about the various basic accounting terms. And now, after completing the chapter number 2, we will move to the chapter number 3, that is an accounting concept and conventions. The chapter number 3 is related to the accounting principle. You know very well, principle are the general guideline which guide us to frame a new type of the accounting policies, regulations, and such type of the principle have a universal acceptability, and such type of the statement guide us to how to record the transactions in the books of account. So without creating any delay, let's we start the few of the important accounting concept and convention जो हमें हेल्प करेगा कि हम कैसे किसी भी ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दें, एज वेल एज ये हमें ये भी गाइड करता है कि हम कैसे बिजनेस के जो कंपोनेंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, इन सब को कैसे हम अपने बिजनेस में एडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे इनको रिकॉर्ड करें, कैसे इनको क्लासिफाई करें और कैसे इनको हम मेजर करें इन द टर्म्स ऑफ मनी. In the last video, we already discussed there are basically two types of the accounting principle. If we are talking about the types of accounting principle, so you know very well there are basically two types of accounting principle. How many types of accounting principle? Two types of the accounting principle. The first one is a accounting concept or assumption. The first will be accounting concept or assumption. Okay, and the second type of the accounting principle will be a accounting convention. और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि हाउ इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बेसिकली The accounting concept or assumption means all those concept जो basically maximum accountant के through follow किया जाता है, यानी लगभग 99% accountant जो होते हैं इस तरह के concepts को follow करते हैं. Whereas in the accounting convention ये परंपराएं हैं एक तरह से जिनको follow करना या ना follow करना ऐसा कोई compulsion नहीं है. So there are basically two types of the accounting principles. The first will be accounting concept or assumption and second will be accounting convention. और हम लोग बात करें कि कौन कौन से accounting conventions हैं, ठीक है, किनको हमें फॉलो करना 100% हमें फॉलो करना चाहिए. सो accounting conventions जो है बेसिकली चार हैं. एक है आपका फुल डिस्क्लोजर, सेकेंड है आपका मटेरियलिटी, थर्ड है आपका कंजर्वेटिज्म. ओके, सो फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी और कंजर्वेटिज्म एंड साथ ही साथ आपका कंसिस्टेंसी. ये जो चार आपके पॉइंट्स हैं, ये चार जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब के सब अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं. ये सब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एजम्पशन की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है. तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन. अब हम लोग वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे कन्वेंशंस को डिस्कस करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज
गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बेसिकली हमारे इंडिया में कई तरह के AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हैं, जिसमें से AS 1 के अकॉर्डिंग जो है 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशंस बनाए गए हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। इनको फॉलो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन से कन्वेंशंस हैं। द फर्स्ट विल बी अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। So the first concept which will be discussed in this chapter, that is an going concern concept. So what is going concern concept? Please note down the first concept. It will be a going concern concept. Going concern concept. So according to going concern concept, you know very well, इस कॉन्सेप्ट का ये मानना है कि बिजनेस जो है वो इनडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा, यानी बिजनेस का जो एक्सपायरी पीरियड है, एक्सपायरी डेट है, वो प्री डिसाइडेड नहीं होगा। यानी व्हेनेवर जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टैब्लिश करता है, बिजनेस इनकॉर्पोरेट करता है, तो उसकी एंडिंग डेट डिसाइड नहीं करता, यानी बिजनेस चलता रहेगा इनडेफिनिट पीरियड तक। यही है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि बिजनेस जो है वो इनडेफिनिट पीरियड तक क्या होगा, चलता रहेगा, उसकी कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं होगी। सो प्लीज नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इट इज assumed that the business will continue. The business will continue to exist for a long period in a future. यानी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का ये कहना है कि बिजनेस जो है वो इनडेफिनेट पीरियड तक क्या रहेगा, चलता रहेगा फ्यूचर में। इसके साथ ही साथ है सेकंड है आपका, द सेकंड कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। जो इन सारे कॉन्सेप्ट्स के जो मेन पॉइंट हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और इन कॉन्सेप्ट की जो रिलेवेंसी है, आखिर ये कॉन्सेप्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सारे कॉन्सेप्ट को हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट विल बी अ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का क्या कहना है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कांस्टेंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जो हम मेथड यूज करते हैं, methods should remain consistent, from 1 year, consistent from 1 year to another,
यानी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का कहना ये है कि जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट या मेथड यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, वो कंसिस्ट होना चाहिए। उसमें हमें अपने हिसाब से तुरंत चेंज नहीं करना चाहिए। ये कहने का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी अ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। What is accrual concept? According to accrual concept, हमें कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी क्या करना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि यही बिजनेस की सही इफिशिएंसी, सही प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करता है। अगर हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करें, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ना करें, तो कहीं ना कहीं हमारा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट शुड बी फॉलोड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सो एक्रूअल कॉन्सेप्ट का ये कहना है कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल आर मेड, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड, रेवेन्यू रिकॉर्ड होनी चाहिए व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विस आर रेंडर्ड, ठीक है। यानी कि जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट का कहना है कि हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, यानी रेवेन्यू अगर जनरेट हो रही है, तो उसे हमें कब रिकॉर्ड करना चाहिए, जब सेल्स हो या सर्विस हमने प्रोवाइड कर दिया, चाहे पेमेंट मिला हो चाहे न मिला हो। लिखा है इट इज इमैटेरियल, whether cash is received or not. Cash is received or not. So this is the third concept. Now we are moving to the fourth concept. Fourth is business entity concept. Business entity concept. What is business entity concept? Business entity concept says that there should be a proper difference, entity different between the owner as well as the business. अपने बिजनेस का जो ओनर होता है, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स बिजनेस। सो प्लीज नोट डाउन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट एंड इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। ओके, सो बिजनेस इज ट्रीटेड एज a unit separate and distinct from its owner. बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ये कहता ये है कि हमारा जो बिजनेस है और उस बिजनेस के जो ओनर हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इन दोनों को आपस में मर्ज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बिजनेस एंड बिजनेस का जो ओनर है दोनों एक ही लोग होते, नहीं। बात तो वही है कि भाई बिजनेस चलाने वाला ओनर ही होता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस के ओनर को बिजनेस से अलग समझना चाहिए। इसीलिए बिजनेस क्या करती है, अपने ओनर को ऐसे लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करती है। कैपिटल लगाया, मतलब पैसा इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल की तरह रिकॉर्ड करती है। पैसा विड्रॉ किया तो किसकी तरह ट्रीट करती है ड्राइंग की तरह। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंड नंबर 5th इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी measurement concept.
व्हाट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो ये बोलता है कि बिजनेस में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होने चाहिए जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। जिन ट्रांजेक्शन्स को हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। सो प्लीज़ नोट डाउन, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स will be recorded in books of accounts which can be measured in monetary terms, जिसे हम monetary terms में measure कर सकते हैं। इसके आगे यही लाइन है, प्लीज कंप्लीट दिस लाइन। Only those transactions will be recorded in the books of account which can be measured in monetary terms. So this is the first 5 accounting concept and convention। रफ करने से पहले मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का कहना है कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। बिजनेस अनंत जीवन तक चलता रहेगा, बिजनेस की एक्सपायरी डेट डिसाइड नहीं होती है। नंबर सेकेंड, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम जिस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स या मेथड को अडॉप्ट करते हैं एक बार, उसे हमें बार बार यूज़ करना चाहिए जब तक कोई रिलेवेंट रीज़न ना आ जाए, जब तक कोई सिग्निफिकेंट रीज़न ना आ जाए, तब तक हमें उन प्रिंसिपल्स को, उन मेथड्स को चेंज नहीं करना चाहिए। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें कैश ट्रांजेक्शन्स के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। कैश मिला नहीं मिला, इट इज़ एन इमटेरियल वाइल बी रिकॉर्डिंग द रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू बेसिकली कहना का मतलब ये है कि रेवेन्यू तब मानी चाहिए जब वो मिल जाए, लेकिन अगर हम क्रेडिट रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो हमें बिजनेस की सही परफॉर्मेंस नहीं पता लग पाएगी कि आखिर एक्यूरेसी क्या है, हमारे बिजनेस में ट्रू प्रॉफिट एक बिजनेसमैन कितना कमा रहा है, ये हम नहीं पता करते। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। एंड नेक्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका कहना है कि बिजनेस और बिजनेस के ओनर दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसीलिए बिजनेस का ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे हम कैपिटल, और निकालता है तो ड्राइंग। ठीक है, इसीलिए इसको इस तरह से ट्रीट करते हैं। और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट, यू नो वेरी वेल। ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जिसे हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। जिन ट्रांजेक्शन्स को हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट द फर्स्ट 5 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। प्लीज नोट डाउन। The next type of the concept is accounting period concept, and before that we will discuss the 5 concepts. So this is the sixth concept of today's session is accounting period concept. What is accounting period concept? Please listen carefully, you know very well. According to going concern concept, जो लाइफ होता है बिजनेस का वो इंडेफिनिट पीरियड चलता है। उसकी लाइफ जो होती है वो डिसाइड नहीं होती है, एक्सपायरी टाइम डिसाइड नहीं होती है। तो अगर आप यू कैन सी दैट कि अगर बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा, बिजनेस की लाइफ डिसाइड नहीं है, तो हम उसका इवेल्युएशन कैसे करेंगे? सो फॉर द पर्पस ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द बिजनेस हमने ये डिसाइड किया कि अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड किया जाएगा, और उस पीरियड में उसके प्रॉफिट एंड लॉस, उनके पोजीशन के बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द लाइफ ऑफ द बिजनेस is divided into multiple small period
जनरली किसमें होता है 12 मंथ्स का होता है, दैट इज 12 मंथ्स मल्टीपल स्मॉल पीरियड्स टू determine the profitability, to determine the profitability of business. So basically what is accounting period concept? accounting period concept का कहना है कि बिजनेस की जो लाइफ है जो प्री डिसाइडेड नहीं है, तो भी हम क्या करते हैं एक 12 महीने का एक इंटरवल डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, डिवाइडेड इन द मल्टीपल स्मॉल पीरियड या मल्टीपल स्मॉल इंटरवल्स, जो कितने महीने का होता है 12 महीने का होता है, और हर 12 महीने के हम क्या करते हैं अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर हम फाइंड आउट करते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बिजनेस का पोजीशन कैसा है, बिजनेस के एसेट्स कितनी है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये सब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो विच इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्लियर? और इसमें आपको ये समझना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि बेसिकली 2 तरह के ईयर हम लोग फॉलो करते हैं, एक कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं और दूसरा हम लोग क्या फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। जो कैलेंडर ईयर होता है हमारा, कैलेंडर ईयर कब से कब तक का होता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और वेयर इज फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से हमारा 31 मार्च। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। द नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। Next is cost concept. So what is cost concept? According to cost concept, assets is ordinarily recorded. Assets is ordinarily recorded in books of account. In books of account at the price at which, यानी एसेट्स को किस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस, उस प्राइस पे एट विच इट वॉज एक्वायर्ड, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम एसेट्स को उस प्राइस पे या उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जिस वैल्यू पे हम इसको परचेज करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एसेट्स खरीदा, तो एसेट्स का सबसे पहला क्या प्राइस होता है, परचेज प्राइस, जिसमें हमने उसको परचेज किया, ठीक, प्लस परचेज प्राइस के साथ उसमें हम लोग क्या पे करते हैं, उसे हम जिस जगह से खरीदें उस जगह से वहाँ तक लेकर आते हैं जहाँ हमें उसे यूज़ करना है, ठीक है। एसेट जनरली हम उसी लिए परचेस करते हैं, यूज़ करने के लिए या प्रोडक्शन के लिए या सेल के लिए, तो परचेस किया प्लस उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस अगर उस एसेट्स को यूज़ करना है, उससे प्रोडक्शन करना है, तो हमें उस एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इंस्टॉल के लिए एक बंदे को बुलाना पड़ेगा, एक पर्सन को बुलाना पड़ेगा, सो वो क्या हो गया आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट। सो बेसिकली यू कैन सी दैट इसीलिए एसेट्स की एक्यूरेट कॉस्ट निकालने के लिए 3 पॉइंट्स को उसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, ओके। नेक्स्ट नंबर 8 will be a dual aspect concept. What is dual aspect concept? According to dual aspect concept, every transactions have a 2 effect, यानी हर ट्रांजेक्शन का कितना इफेक्ट पड़ता है, 2 इफेक्ट, और हर 2 इफेक्ट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, 1 by 1 रिकॉर्ड करते हैं। सो प्लीज नोट डाउन, एवरी ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड as having a dual aspect. Every transactions at least affect 2 accounts. Every transactions affects at least 2 accounts. Affects
एटलीस्ट टू अकाउंट्स। क्या करता है, हर ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में होते हैं वो किसको इफेक्ट करते हैं, एटलीस्ट टू अकाउंट, कम से कम 2 अकाउंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, अगर एक अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिटेड, अगर एक अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं, सो एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। So any other account must be credited. Okay, so please note down. It is very important concept for us. That is a new aspect concept. Now we are moving to the next concept. Is revenue recognition concept. Next will be a revenue recognition concept. So what is revenue recognition concept? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट सेज दैट कि व्हेन रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड, हमें कब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एक्चुअल कॉन्सेप्ट का तो ये कहना था कि भैया जब भी आप सेल कर दिया, जब भी आपने सेल कर दिया, चाहे वो कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, हमें क्या कर लेना चाहिए, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या करता है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्या करता है, थोड़ा सा अलग बात करता है। इसका कहना ये है, according to this concept, revenue recognition determines the time and particular period which the revenue is realized. Revenue is deemed to be realized when the title of ownership has been transferred to the purchaser. इसमें लिखा हुआ है revenue is deemed to be रियलाइज्ड। आपको ये मान लेना चाहिए कि रेवेन्यू आपकी रियलाइज्ड हो जाएगी, डीम टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। इट मीन्स ये कहना है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होती है, जैसे हमने कोई सामान बेचा, तो बेचते टाइम हम उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगी जब हम ये कह लें कि यस नाउ द ओनरशिप, नाउ द टाइटल ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर। यानी मैंने अपना गुड्स का जो मेरे पास टाइटल था, मैंने उठाकर उसको दे दिया, किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, तो हम ये मानेंगे कि रेवेन्यू क्या हो गई, रिकॉग्नाइज हो गई। इसको नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज द 9th रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा बाकी जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का कहना था कि बिजनेस जो है वो इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा, बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा तो हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी करेक्ट मेजर नहीं कर पाएंगे, तो हम पूरे लाइफ को हम लोग क्या करते हैं, एक साल के पीरियड में डिवाइड कर लेते हैं, और हर साल क्या करेगा बिजनेस अपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा, ठीक है। सो दिस इज एन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जिसमें 2 ईयर होता है, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी एसेट्स को हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, एट द प्राइस विच इज़ एक्वायर्ड, मतलब उस प्राइस पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस पे हमने इसको एक्वायर किया है। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट, हर ट्रांजेक्शन क्या करता है, 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है, जिसमें वन इज अकाउंट इज डेबिटेड एंड एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड, यानी जिसमें एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं।
एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का कहता है कि हमें रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज या मान लेना चाहिए कि हमें मिल जाएगी जब किसी भी गुड्स की टाइटल या ओनरशिप क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है. सो नोट डाउन